any more time on my introduction because I know none of you is interested in knowing who I am, but what I'm going to teach you today, of course. So, in today's session, you are going to build your very first website and then we are going to host it. So, this session is going to be quite interesting and as well beneficial for you, especially if you are a beginner. और लेकिन जो beginners नहीं है उनके लिए थोड़ा सा boring हो सकता है. But I will still suggest you to stay with us till the end because in the end of the session we are going to provide you a link to a feedback form और उसको सबमिट करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट से इशूड है. सो आई गेस नन ऑफ यू वांट्स टू मिस इट, राइट? सो नाउ बिफोर गेटिंग एनी मोर लेट आई थिंक आई शुड जस्ट स्टार्ट. सो मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? जी अरीबा, आपकी स्क्रीन विजिबल है. Okay, thanks. So first of all, I'm going to open up my Chrome and go to codepen.io. Basically, this is online editor. तो आप लोगों में से जो पहले से वेब डेवलपमेंट पर काम कर चुके होंगे वो सोच रहे होंगे हमें ऑनलाइन एडिटर की क्यों ज़रूरत है जब हम अपने एडिटर से भी सारा काम कर सकते हैं. सो यस, यू कैन डू द सेम वर्क विद एनी एडिटर ऑफ yours. But the benefit we are getting here is the live output. So yes, now you don't have to open your browser again and again and refresh it to check even your minor changes. So it will save your time and as well your energy. Or if you are lazy like me, so go for it. इससे अच्छी चीज़ आपके लिए हो ही नहीं सकती. Okay, now after opening the website, you will find somewhere the sign up option on your screen. You can just go there and sign up yourself. And after signing up, this is how the interface of this website would look like. Now I'm just simply going to create the pen. अच्छा, आप लोग ये टेंशन नहीं लेंगे कोड लिखने के बाद वो सेव कैसे होगा, कहाँ होगा, क्योंकि एक तो आपका कोड वेबसाइट के डैशबोर्ड में ही सेव हो जाता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ. और दूसरा, आप अपने कोड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन आता है जब हम कोड को सेव करेंगे तो आप उसको अपने पीसी में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. ओके, सो नाउ यू आर सीइंग 4 पैनल्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू: HTML, CSS, JavaScript, and this big screen is where your output will be generated. So for today we are going to cover only basics of HTML and CSS क्योंकि हमारे पास टाइम कम है. तो JavaScript के लिए हम बाद में कभी एक और सेशन रख लेंगे. So what is HTML and CSS? First of all, so HTML and CSS both are web programming languages. Basically, HTML is for the structure of our website and we use CSS for styling our web page. In simple words, we can say that HTML will represent the content of our web page and CSS will always represent the appearance of our content. अच्छा, एक और चीज़, आज हम लोग जो एक सदियों से प्रोग्रामर्स का ट्रेंड चला आ रहा है कि हर चीज़ को हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करना है, आज हम इस ट्रेंड को तोड़ने वाले हैं. हम लोग डायरेक्ट अपनी वेबसाइट बनाएंगे क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और इसलिए मैं आप लोगों को अच्छी तरह से फील कर सकती हूँ कि आप लोगों को कैसा लगता है और आप लोग किस तरह बोर होते हैं. इसलिए हम लोग ये सब नहीं करेंगे और हम लोग डायरेक्ट अपनी वेबसाइट बनाएंगे. तो वेबसाइट हम लोग एक बेसिक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ वेबसाइट बनाएंगे. तो बहुत हाई फाई वेबसाइट तो नहीं होगी क्योंकि इतने कम टाइम में हम बेसिक्स ही बना सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसके बाद आप अपनी खुद प्रॉपर्टीज़ को सर्च करके आपको इंटरनेट पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग खुद उसको एक्सप्लोर करके उसमें एडिशंस कर सकते हैं. सो अब मैं कोड स्टार्ट कर देती हूँ. तो द वेरी फर्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू राइट इज टाइप HTML. So this line will tell our browser that what type file we are writing. Yes, one more thing, our browser contains something similar like compiler called parser. So parser parses our code and displays the output accordingly. So the next line I'm going to write is HTML. So in HTML programming, anything written in between the angle brackets called as tags. So the tags here work same as brackets in Java or C++. So let's say if it was our opening bracket and now to close it, we will write. So the one with, so this one is our opening bracket and the one with the slash in it is our closing bracket. अच्छा, तो ये दोनों टैग क्या करते हैं, ये हमारे ब्राउज़र को बताते हैं कि दिस इज़ द रूट ऑफ आवर वेबसाइट एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वेबसाइट. तो हमारा जो सारा कोड होगा वो इन दोनों टैग्स के बीच में होगा. सो द सेकंड टैग वी आर गोइंग टू यूज़ इट द हेड टैग. में क्या होता है, बेसिकली हमारी वेबसाइट की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होती. लाइक मेटा डेटा होता है हमारी वेबसाइट का या कोई लिंक्स वगैरह हमें ऐड करनी होती हैं
और हम लोग हाँ टाइटल भी देते हैं इसमें, जो टाइटल हमारा टाइटल बार में डिस्प्ले होता है, तो इसमें कुछ भी चीज़ हमारी जो है वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पर टाइटल दूंगी फर्स्ट वेब पेज, ये टाइटल आपके पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग अपने इस वेबसाइट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो वो इस जगह टाइटल बार में यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, नाउ अवर ऑल द विजिबल कंटेंट विल फॉल इन द बॉडी टैग. So the body tag here works like same as our main function in our programming languages. अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग आती है, आई एम श्योर आती होगी प्रोग्रामिंग की कोई लैंग्वेजेस तो आपको सबको ही। अच्छा, अब ये हमारा किसी भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है। हम लोग मतलब अब जो भी कंटेंट हमें ऐड करना होगा वो हम बॉडी टैग में ऐड करेंगे, तो ये हमारा सारा बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, Ariba, just 1 minute. Like we are having some people from first year as well जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई इतना ज़्यादा खास आइडिया नहीं है। So I would suggest कि आप जो है ना वो थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करें प्लीज। ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बता सकता है, आप लोग मुझे बीच में बता सकते हैं तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा, इतना तो बिल्कुल बेसिक बताया है मैंने अभी तक। मतलब अब हम जो सारा कंटेंट लिखने वाले हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखने वाले हैं अपना। So first of all, we are going to create the header of our website. So for heading, HTML provides us 6 built-in heading tags from H1 to H6, where H1 is our largest and H6 is our smallest, and others fall in between. So let's see how it works. इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो वैसे फिक्स्ड होता है हर हेडिंग टैग के लिए हमारे पास, लेकिन हम चाहें तो उसको स्टाइलिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। सी, this one is our largest, this is second largest, this is third and so on, but for now we only need H1, this that is our main heading। क्योंकि हम अपना हेडर बना रहे हैं वेबसाइट का, तो वो हमारी मेन हेडिंग से ही क्रिएट होता है। अच्छा, तो आप इस हेडिंग में आप लोग अपना नाम दे सकते हैं। सॉरी व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन अभी भी हमारी ये हेडिंग जो है वो अच्छी नहीं लग रही और हमें इसे अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर थोड़े स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। तो जब आप लोग अपने ऑफलाइन एडिटर पे काम करते हो तो आप दो फाइल्स क्रिएट करते हो, एक .html एक्सटेंशन के साथ और एक .css एक्सटेंशन के साथ। फिर आपको उनको क्या करना पड़ता है, उन दोनों फाइल्स को आपको लिंक करना पड़ता है। तो लिंक करने के लिए हमारे पास एक टैग है लिंक रिलेशन, इसका ये एट्रीब्यूट है। अब इस इन्वर्टेड कॉमा में आप अपनी उस वेबसाइट उस फाइल का नाम दोगे जो आप लोगों ने अपने पीसी में क्रिएट की है जिस भी नाम से। तो इस वेबसाइट के बैकएंड पे CSS फाइल का नाम style.css से है, तो मैं यहाँ पर यही दूंगी। अब हम इस पर देखते हैं हम इस पर कैसे स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें स्टाइल अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, अपनी CSS फाइल में पहले उस टैग का नाम लिखना होता है जिस पे हमें स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, फिर एक उसकी एक बॉडी क्रिएट करनी होती है। नाउ इन दैट बॉडी वी कैन डिफाइन अवर ऑल द प्रॉपर्टीज़ जो भी हमें अप्लाई करनी है इस पर स्टाइल्स के लिए। तो हमें CSS वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज़ वेरी फ्यू एंड द बेसिक वंस। सो पहले तो हम इसको सेंटर में लेके आते हैं। तो टेक्स्ट को सेंटर में लेके आने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, इसका सिंटेक्स आप लोग देख लें कि पहले हमें प्रॉपर्टी का नाम देना होता है, उसके बाद कॉलन के बाद उसकी वैल्यू और उसके बाद सेमी कॉलन पे एंड। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिससे हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आपका जो दिल चाहे आप वो कलर दे सकते हैं यहाँ पर जी। और टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कलर से हम उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। लेट्स गिव इट
इसके अलावा भी आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप चाहें। अच्छा, हमारे पास एक टैग होता है बीआर टैग, जो एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट करने के लिए होता है, तो हम अपने हेडर को उससे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सी हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे ओके, अब हमारी वेबसाइट का हेडर तैयार है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम कंटेंट टू अवर वेबसाइट। तो उसके लिए हम बेसिक पोर्टफोलियो काइंड वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने मर्जी से कोई भी कंटेंट रख सकते हैं इसमें। तो जो बहुत बेसिक, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, मैं वही यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम एक और हेडिंग क्रिएट करते हैं अबाउट की। मैंने यहाँ पर H2 यूज़ किया ताकि वो उससे थोड़ी सी छोटी हो जाए और हम फिर इसको अलग से स्टाइल दे सकते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा स्टाइल नहीं देते, सिर्फ इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब आप अबाउट में आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऐड लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अगर पिक्चर ऐड करना चाहें तो हमारे पास उसके लिए एक टैग है, इमेज टैग। तो वो कैसे काम करता है, लेट मी शो यू। इमेज, पहले तो हम इमेज का टैग लिखते हैं, उसके बाद इसका एक एट्रीब्यूट होता है एस आर सी। एस आर सी क्या बताता है कि रिसोर्स बताता है कि हम कहाँ से अपनी इमेज को पिक कर रहे हैं। उसके बाद इक्वल्स टू एंड देन इन्वर्टेड कॉमा। फिर इस इन्वर्टेड कॉमा में हम अपनी उस इमेज का यूआरएल दे सकते हैं, और अगर आप लोग अपने ऑफलाइन एडिटर में काम कर रहे हैं तो आप अपनी इमेज का सिंपली पाथ दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसका एक डमी इमेज का यूआरएल कॉपी करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगी सिंपली। यहाँ पर हमारी इमेज आ गई। इसके बाद अब हमें थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए वी हैव द पी टैग, मतलब पैराग्राफ टैग। उससे हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो पी टैग के लिए पहले पी टैग को हमें ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद वो भी मैंने एक डमी टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है, बिकॉज आई एम सो लेजी, तो मैं लिख नहीं सकती, सॉरी। अच्छा, अब आप लोग ये देखें, हमारा टेक्स्ट जो है वो इस इमेज के नीचे आया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इमेज के बराबर में आए तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो उसके अभी क्या हो रहा है, ये इमेज ने हमारा ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इमेज को चाह रहे हैं कि वो सिर्फ जितनी स्पेस पर है लेफ्ट साइड पर वो इतना ही स्पेस ले, और वो जो राइट वाला एरिया है वो उसको फ्री कर दे। तो इसके लिए हम एक इमेज टैग में एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जिससे वो हमारा राइट वाला एरिया फ्री कर देगा, और उसके बाद हम अपना टेक्स्ट हमारा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के बराबर में बिल्कुल शिफ्ट हो गया, एंड नाउ इट लुक्स बेटर दिस वे आई थिंक। अच्छा, उसके बाद आप लोग जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं। आप लोग स्किल्स ऐड कर सकते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, अपनी कोई भी अचीवमेंट ऐड कर सकते हैं, और मतलब जो भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द स्किल्स। कि पहले पी आर से एक थोड़ा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद एक और हेडिंग क्रिएट करते हैं, H2 फॉर स्किल्स। Now in this section we are going to list our skills. So for list, HTML provides us two kinds of list, unordered list and ordered list. तो जो बुलेट लिस्ट होती है हमारे पास, वो here named as unordered list, and number list here named as ordered list. तो let me show you both. तो अगर हम नंबर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम टैग लगाएंगे OL, जो कि है ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड देन क्लोज इट। अब इसके अंदर, इस टैग के अंदर हम अपने लिस्ट के सारे आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो वो उन लिस्ट आइटम्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है लिस्ट आइटम। उससे आप जो भी यहाँ पर टेक्स्ट चाहें ऐड कर सकते हैं, मतलब आइटम्स अपने सारे। लाइक अगर मैंने C++ ऐड किया, सी, तो वो यहाँ पर ऐड हो गया है हमारी नंबर लिस्ट के साथ। अब यहाँ पर आप लोग जितनी चाहें अपनी लिस्ट एक्सटेंड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आप लोग देखें सारी जो हमारी लिस्ट है वो एज नंबर्ड लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। तो अगर हम चाहें तो इसको बुलेट्स में डिस्प्ले करना तो हम वो भी कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ से ओ को हटा के यू लगा देंगे, दैट इज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो नाउ लेट्स सी। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग टैग है वो दिखाना चाहती हूँ। वो मैं आपको पहले उसके लिए एक चीज़ दिखाती हूँ, फिर मैं आपको पहले वो अलग से वो टैग समझाती हूँ, फिर हम उसको अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे। अच्छा, जो डैशबोर्ड ऑप्शन की मैं बात कर रही थी वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप इसको खोलेंगे तो आपके जो प्रीवियस सारे पेन्स होंगे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, सी, अगर आप लोग को कोई इस तरह की वेबसाइट बनानी है तो व्हाट विल यू डू, मतलब आप क्या करेंगे, 3 बार अलग अलग कोड लिखेंगे इन 3 बॉक्सेस को बनाने के लिए। नो, यू नो अ गुड प्रोग्रामर विल नेवर रिपीट अ कोड। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छा जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आती है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक चीज़ होती है फंक्शन। उससे हम क्या करते हैं, हम लोग रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन काइंड ऑफ चीज़ है कॉल्ड एज डिफ। फंक्शन तो हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन उसका काम सिंपल सिंपल फंक्शन की तरह ही होता है। वो क्या करता है, हमारे कुछ कोड को ग्रुप कर देता है और काइंड ऑफ कंटेनर बना देता है। तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि वो कैसा होता है। उसके लिए हम अलग से एक पेन क्रिएट करते हैं। अच्छा सी, मैंने यहाँ पर वो एक क्रिएट कर दिया डिव। अब हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे हम करते हैं कि हम अपने फंक्शन को मेन बॉडी के ऊपर वाले ब्लॉक में हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम मेथड है। हम क्या करेंगे, अपने डिफ को हम CSS में डिफाइन कर देते हैं। सी, अब हमें इसमें जो भी हमें जिस तरह का भी अपना कंटेनर बनाना है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे एक कंटेनर बनाना है, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं आप लोगों को वही बना के दिखाती हूँ। हाइट, और ये हमारे पास सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप लोग अभी फ़िलहाल ये देख सकते हैं कि किस तरह यूज़ होती हैं। उसके बाद आप लोग उन्हें खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और एक बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब हमने अपना यहाँ पर काइंड ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। फिर हम क्या करते हैं, हम उससे मेन में कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम वो कॉल वाला जो प्रोसेस है हमारा, वो हम इस HTML फाइल में करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, अच्छा मैंने यहाँ पर CSS को कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि ये बैकएंड पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो लेकिन आप लोग जब ऑफलाइन एरिया पर काम करेंगे तो आप लोगों को उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर HTML के साथ कॉल करूँगी, अच्छा अभी यहाँ पर ये छोटा सा आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे अपनी HTML की बॉडी को पहले 100% तक स्ट्रेच करना पड़ेगा, उसकी हाइट को, फिर हम हाइट को डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अब हम इसको जितनी बार चाहें हम कॉल कर सकते हैं, जैसे हम अपने फंक्शन में करते हैं सिंपली। तो हमने एक दफ़ा इसको HTML के साथ कॉल किया, एक दफ़ा हमने इसको CSS के साथ कॉल कर लिया, और एक दफ़ा हम इसको जावास्क्रिप्ट के साथ कॉल कर लेंगे। अच्छा, तो इसने किया क्या, इसने एक कंटेनर बना दिया सिंपली। तो एक तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हम हमारी रिपीटेशन कम हो जाती है, और दूसरा कोड को समझने में भी आसानी हो जाती है अगर हम कंटेनर्स बना देते हैं हर सेक्शन के लिए अपने पास। तो अभी जो हम अपनी वेबसाइट में करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम लोग कंटेनर बनाने वाले हैं। और उससे मैं ज़्यादा डिफ पर स्टाइलिंग तो अप्लाई नहीं करूँगी, लेकिन ये होगा कि कंटेनर बनाने से हमारा कोड थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और हमें समझ आ जाता है। तो हम हर सेक्शन के लिए एक कंटेनर बना देते हैं। लाइक यहाँ पे से हम क्रिएट करेंगे वो डिव टिल हियर, और हम स्किल्स में भी करते हैं यही काम। हम इसको सिंपली डिस्प्ले करने के लिए कि ये काम किस तरह कर रहा है, कलर दे देते हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा एक कंटेनर बना हुआ है। तो इसको एक
लाइक दिस कलर बाय द वे। सी हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, एक तो थोड़ा इसका लुक भी अच्छा हो गया और दूसरा कोड में हमें इजीली, हमें कोई हमारा कोई दूसरा बंदा कोड देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि हमारा एक सेक्शन है, ये हमारा दूसरा सेक्शन है। अच्छा, तो अब हम जो तीसरा सेक्शन बनाने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, मतलब ये मतलब हर वेबसाइट में अब ज़रूरी होना चाहिए कॉन्टैक्ट का सेक्शन, क्योंकि अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट या पोर्टफोलियो कुछ भी दे रहे हैं तो वो कुछ मकसद से आपका देख रहा होगा तो उसको आपको कॉन्टैक्ट करना होगा उसके बाद। तो जो थर्ड वन हम बनाने वाले हैं वो कॉन्टैक्ट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम एक और हेडिंग क्रिएट करेंगे, कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो कॉन्टैक्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में आप लोग अपनी लिंक्स दे सकते हैं, या जैसे कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल के लिंक दे सकते हैं, अपने ईमेल का लिंक दे सकते हैं, ताकि कोई आपको इजीली उस पर क्लिक करे और आपको रीच कर सके। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा कॉन्टैक्ट का जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम लोग एक इमेज यहाँ पर भी ऐड करते हैं, और उसमें मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहती हूँ इसलिए। तो पहले हम एक इमेज ऐड करते हैं। अभी मैंने यूआरएल कॉपी करके रखा हुआ है। सी अब ये इमेज ऐड तो हो गई है, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम नहीं चाहते इतनी बड़ी, और ऑब्वियसली बहुत बुरी लग रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इमेज के टैग के अंदर ही इसको, इसकी हाइट और विड्थ को कम कर सकते हैं। एक ये भी तरीका है, मतलब आप CSS में भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आपको दोनों तरीके पता हों। कर देते हैं इसको। अब ये छोटी तो हो गई है, लेकिन एक और मसला आ गया हमारे पास कि ये कॉर्नर पर चली गई है और अब हमें इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर के लिए, वैसे तो इमेज को सेंटर में करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो मेरा मोस्ट फेवरेट है और मोस्ट ईजी है वो मैं आपको बताती हूँ, और जो प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं ताकि ईजिली आपको समझ आ सके। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो हमने पैराग्राफ के लिए पढ़ी थी बेसिकली। तो उसके में क्या होता है, जैसे कि आपको उस प्रॉपर्टी के नाम से ही पता चल रहा है टेक्स्ट अलाइन, कि हम सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर पर अलाइन कर सकते हैं। अब इमेज तो हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, तो हम उसको कैसे अलाइन करें। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप लोग, अगर आप लोग इमेज को पी के टैग में नेस्ट कर दें, तो पी को तो हम इजीली टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर हम पी को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो उससे हमारी इमेज जो है वो भी सेंटर में हो जाएगी। अब नाउ हमें यहाँ पर CSS में आके हम पी को सिंपली सेंटर पर अलाइन कर देंगे। अच्छा, आप लोगों को ये वेबसाइट बनवाने का हमारा मकसद ही ये है कि आपको पता चल जाए कि आप ये बेसिक चीज़ें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक टेक्स्ट से आप कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ लोग देखे हैं जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता वेब डेवलपमेंट और वगैरह में, लेकिन उन्हें इस टाइप की वेबसाइट ज़रूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें कभी फॉर्म में, किसी फॉर्म में कोई CV वगैरह इस तरह की चीज़ें मांगी हुई होती हैं। तो इसलिए आप लोग, ये थोड़ी बहुत तो आप लोगों को आनी चाहिए कि आप इतनी अपनी बेसिक वेबसाइट को आप बना लें। सो नाउ सी हमने इमेज भी सेंटर पे कर लिया और बहुत इजी तरीके से हमने इसको कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक और इसमें हेडिंग देते हैं। कैसे आ रही है, इसको भी सेंटर पे ले आते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने शायद आपको नहीं बताई, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज लेट्स से 30। PX का हमारा जो यूनिट है वो पिक्सल के लिए होता है, तो हमने यहाँ फॉन्ट साइज भी चेंज कर दिया। और अच्छा, हमने पी को जो है वो पहले से टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है, तो ये हमारा सेंटर में ही डिस्प्ले होगा। मतलब आप एक दफ़ा कर देते हैं तो
वेट अ मिनट, मैंने काम सॉरी बार बार नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग लिंक्स देने वाले हैं। लिंक्स कैसे देंगे हम लोग, अच्छा लिंक्स के लिए हमारे पास एक टैग होता है एंकर टैग, जो हम ए से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, एचरेफ इसका एक एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद ये लिखने के बाद इस इन्वर्टेड कॉमा में आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल का या जहाँ पे भी जिस तरह का कॉन्टैक्ट आप देना चाहते हैं वहाँ उस चीज़ का आप यूआरएल यहाँ लिख दें। जैसे कि अगर मैं अपने ईमेल का लिंक देना चाहती हूँ तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है, मेल टू लिखकर हम यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखें, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दें कि आप कहाँ पर उन्हें कॉन्टैक्ट करवाना चाहते हैं, ईमेल। लेट मी शो यू, देखें इधर कॉर्नर पर हमारे पास लिंक का टैग बन चुका है, ईमेल। अब मैं इसको क्लिक करूंगी अगर, तो ये मुझे इस पेज पर लेकर आ जाएगा जहां से मैं उसको डायरेक्ट ईमेल कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से आप लोग एक अपनी फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल दे सकते हैं, किसी भी प्रोफाइल का आप लोग यूआरएल दे सकते हैं अपना। सो लेट्स से अगर आप लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं अभी ऐसे ही रफली दे रही हूँ। अब ये भी हमारे पास क्या मसला हो रहा है, कॉर्नर पर आ रहे हैं। और ये भी हमारे पास क्या मसला है कि ये भी जो है हमारे पास वो टेक्स्ट नहीं है, लिंक है। तो हम इसको भी उस प्रॉपर्टी से सेंटर वैसे ही कर सकते हैं जैसा हमने इमेज को किया था सिंपली। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी पी के टैग में नेस्ट कर देंगे। सी, अब ये सेंटर में हो चुके हैं। और अगर हम चाहें तो इस पर कोई और भी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप लोग चाहें। जैसे हम सिंपल टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं वैसे ही इसका भी सेम प्रोसेस है। तो हम सिर्फ अभी के लिए कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ब्लू कलर बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है। एक मिनट, मैंने इसको डिव में नहीं दिया, सचा बुलक्कड़। अब ये हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो एक मेरा मोस्ट फेवरेट टैग है, वो मैं समझा दूँ। कितना टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, वी हैव टाइम। ठीक है, तो मैं समझा वो दो। समझा देती हूँ, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर लेना। तो वो हम एक टैग ये हमारे पास वो हम स्किल्स में यूज़ करते हैं, प्रोग्रेस टैग। प्रोग्रेस टैग क्या करता है, वो हमारी लिस्ट के साथ ना एक प्रोग्रेस बार ऐड कर देता है, जो बताता है कि हम किस लेवल पर हैं अपनी स्किल्स में। तो ये कोई कुछ कह रहा है, ये हम इस जगह पर ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर, लिस्ट के क्लोज होने से पहले प्रोग्रेस। अच्छा, इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक वैल्यू एक मैक्स। तो वैल्यू में हम बताते हैं कि हम किस लेवल पर हैं, और मैक्सिमम मतलब कि किस में से हम किस लेवल पर हैं। तो जैसे कि अगर हम CSS में 90% स्किल्ड हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे 90, और फ्रॉम मैक्सिमम 100। सी, हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार ऐड हो चुकी है। अब हम इसको हर लिस्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। किसका माइक खुला हुआ है? इसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं। एक और हमारे पास चीज़ होती है, पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, फिर मैं वो दिखाती हूँ। देखें यहाँ पर सारे प्रोग्रेस बार ऐड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लर्निंग फेज में, मतलब आपने अभी जस्ट स्टार्ट लिया है और आप लोगों को
कुछ नहीं आता और आप अभी सीख रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये दोनों एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देंगे और सिंपली सिर्फ प्रोग्रेस टैग को लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, वो एक ऐसी प्रोग्रेस बार डिस्प्ले करेगा जिससे पता चलेगा कि आप अभी लर्निंग फेज में। तो इससे काइंड ऑफ हमारी वेबसाइट में एक एनिमेशन भी ऐड हो गई। लेकिन एनिमेशन हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, बहुत ही सबसे बुरी वाली ये है अब तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप लोग वो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप जैसी एनिमेशन चाहें अपनी वेबसाइट में वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ हमारे पास टाइम कम था, तो मैं इतने कम टाइम में ये बेसिक वेबसाइट ही बना सकती थी। अब आप इसमें जो चाहें वो एडिशंस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट को होस्ट करेंगे जो मुंजा करके दिखाएगी आपको। मुंजा, आर यू रेडी? मुंजा, जी जी, आई एम हेयर। तो फिर स्टार्ट करो। ओके गाइस, काइंडली जिसका माइक ऑन हुआ है वो बंद कर ले, ताकि मैं जब बोलूं तो रिदम डिस्टर्ब ना हो। ओके, मैम एम मेरी आई तरफ ऑडिबल? स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। क्योंकि मैंने अभी तक शेयर नहीं की, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। नहीं, मेरी तरफ पहले भी नहीं आ रही थी, वो काइंडली चेक कीजिएगा ज़रा। अच्छा जी, ठीक है, आप बता दीजिएगा, मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ विजिबल है। चलें जी, ठीक है, फिर आप लोग काइंडली मैम अपने मेरी माइक्स ऑफ तरफ कर अभी दें। भी नहीं आई, मेरी तरफ अभी भी नहीं आई। सर, फिर आपका कोई इंटरनेट का इशू होगा, या आप मीटिंग लीव नहीं करके मैम, दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ ऑप्शन आ रहा है ओनली टीम मेंबर्स कैन आस्क एंड ओनर्स प्लीज आस्क ए मेंबर टू बिकम ए मेंबर। एक मिनट, आप आपका नाम क्या है? अतहर नाम है मेरा, मोहम्मद अतहर। जस्ट लेट मी चेक, जस्ट अ सेकंड। जी हाँ, ये आ गया। अब आ रही है आपके पास स्क्रीन? नहीं बिल्कुल, अभी तो किसी की भी नहीं आ रही। मुंजद, आर यू देयर? जी जी, मैंने किया शेयर। जी अभी तो भी नहीं आई इधर। यार फिर आप ना एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, बिकॉज लिंक जो है वो हमने सबको एक ही जैसा भेजा है, तो ऐसा कोई ठीक इशू नहीं आना चाहिए किसी के भी उसमें। ठीक है, थैंक यू, मैं आई करता हूँ। सपोज इधर योर इंटरनेट इज फॉल्टी, या तो आपने फिर लिंक जो है ना वो सही नहीं यूज किया हुआ। ओके, सो जस्ट शैल वी स्टार्ट? लीव एंड ज्वाइन अगेन, अगर स्टिल इशू आता है देन जस्ट टेल अस। जी जी मुंजा, आप स्टार्ट करें। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन अप टू हियर, और बोर नहीं किया हमने आप लोगों को। वी रियली ट्राइड आवर बेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक यू टू एवरीवन, जो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सिंस इट्स द मंथ ऑफ रमज़ान एंड इट्स अ बिजी मंथ, बट यू गाइस स्टिल have taken out times and you have managed to show here, so I really appreciate that. And I really hope that यहाँ तक आप लोगों को सेशन में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, और आगे जो हम वेबसाइट होस्ट करने जा रहे हैं, एज पर माई नॉलेज मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि बिगिनर लेवल पे वो समझा सकूँ, ताकि सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ बिगिनर्स विद अस राइट नाउ, तो उनको मसला ना हो। Oh yeah, and by the way, sorry, I am Munza Shah and I am a third year engineering student from Mehran University of Engineering and Technology, Jamshedpur, Pakistan. And for the next few minutes, we'll be discussing here web hosting. और उसके बाद we will host our very first website जो अभी अरीबा ने बनाई onto the internet. Also, if you guys have any questions while I'm speaking, you can go ahead and type your queries and questions in the chat section, ताकि जब मैं बोलना बंद करूं तो फिर मैं बाद में आपकी queries वहाँ से देख के उनका reply दे दूँगी, ठीक है? And I request you all to keep your mics off, ताकि एक rhythm maintain रहे, ठीक है? So without wasting much more of your time, with that said, let's start our session. I hope my screen is visible.
So today what we are going to do cover in this session is basically web hosting. पहले हमने सोचा था कि सेशन प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम डायरेक्ट आपको वेब होस्ट करके दिखा दें वेबसाइट आपकी. But since we have a few beginners with us, so I thought why not give a very basic introduction of what web hosting is and why do we need web hosting. फिर उसके बाद हम चलेंगे एक बेसिक प्रोसेस देखेंगे कि वेब होस्टिंग काम किस तरह करती है. And after that we'll use a platform Firebase to host our website for free. और फिर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि वेबसाइट किस तरह होस्ट होनी है. So these are the things that we're going to cover in this session. So let's dive in and understand what web hosting is first of all and why do we need web hosting. अच्छा जी, तो अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं कि वेब होस्टिंग है क्या, तो वेब होस्टिंग इज बेसिकली that you're posting your website onto the internet just as you're posting something onto Facebook. अब ये इतना इजी भी नहीं है कि आपने एक पिक्चर अपलोड किया एंड यू हिट दैट पोस्ट बटन और आपकी पोस्ट चली गई. बट क्योंकि वेब होस्टिंग के पीछे कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आइदर. ये आप लोग अभी कुछ देर में देख लेंगे दैट होस्टिंग योर वेबसाइट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. So web hosting basically means that you're launching your website onto the internet. अच्छा, now the question arises, why is there a need to launch your website onto the internet? भाई वेबसाइट तो हमने बना ली, हमारे पास रखी हुई है. Now why do we need to launch that website? See, अभी जो हमने वेबसाइट बनाई, अभी अरीबा ने जो वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट की जो फाइल्स हैं, फाइल एंड बाय फाइल्स आई मीन index.html फाइल और style.css फाइल, ये दो फाइल्स अभी अरीबा की लोकल मशीन में स्टोर्ड है, या फिर ये दो फाइल्स मेरे लोकल कंप्यूटर में सेव हुई हुई हैं. अब टू हैव दीज फाइल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, मुझे ये फाइल्स इंटरनेट पे कहीं स्टोर करवानी पड़ेंगी ताकि सिर्फ मैं ये वेबसाइट ना देख सकूं, बल्कि people around world can have access on your website. See, when you create a website, your website needs to be on the internet. आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उसको एक्सेस कर सकें, उसको देख सकें. So this is why basically we need web hosting, so that people around us, so that everyone can see and have access on a website. So I hope I made my point clear, and now let's dive a little deeper and understand how basically web hosting works. Okay, so I'm going to explain this concept with a real life analogy so that जो हमारे साथ जो beginners हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या तीन चीज़ें basically ज़रूरी होती हैं और ये क्यों ज़रूरी होती हैं. Sorry. अच्छा जी, तो let's take a basic real life analogy. Let's suppose मुझे एक coffee shop open करनी है. Let's suppose I want to open a coffee shop. So there will be some things that I'll be needing for opening that coffee shop. The very first thing, I'll be needing an architecture और a structure basically for my shop. कि मेरी shop दिखनी कैसी चाहिए, उसका design क्या होना चाहिए, उसके अंदर products किस तरह से रखे हुए होने चाहिए. So the very first thing that I'll be needing would be a design for my shop. कि मेरी shop का design कैसा होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो मुझे अपनी कॉफ़ी शॉप इस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होगी, वो होगी एक फिजिकल स्पेस. एंड बाय फिजिकल स्पेस आई मीन अ पीस ऑफ लैंड. मतलब एक पीस ऑफ लैंड मुझे चाहिए होगा जहाँ पे यार मैं अपनी शॉप खड़ी कर सकूँ, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज डिज़ाइन. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इज स्पेस और अ पीस ऑफ लैंड, अ फिजिकल स्पेस बेसिकली, ठीक है. सो नाउ आई हैव डिज़ाइन रेडी और अब मैंने अपनी शॉप क्योंकि फिजिकल स्पेस में इस्टेब्लिश कर ली है. सो द नेक्स्ट थिंग, अब मैं चाहती हूँ कि लोग आके मेरी शॉप विजिट करें. Kindly turn off your mic, whoever is there. Okay. तो अब मैं चाहती हूँ कि लोग आके मेरी शॉप विजिट करें. तो अब मैं लोगों को किस तरह बताऊंगी कि मेरी शॉप पर आएँ. सो आई विल प्रोवाइड देम विद एन एड्रेस. मेरी शॉप का जो एड्रेस होगा वो मैं अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को दूंगी कि यार गाइस कम एंड विजिट माय शॉप, मैंने ये नई शॉप खोली है. सो what three things do we need? Design, space and an address. Similarly, on the internet, जब आप कोई वेबसाइट होस्ट करने जा रहे हैं, so website is basically a shop that you're going to launch. और उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेबसाइट का डिज़ाइन चाहिए होता है और पिछले आधे घंटे में हमने वही डिज़ाइन रेडी किया है. सो बेसिकली हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन हमारे पास एकदम रेडी है. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इज़ अ स्पेस.
हमें इंटरनेट पे स्पेस चाहिए ताकि हम अपनी जो वेब फाइल्स हैं HTML और CSS फाइल्स जो अभी हमने क्रिएट की वो हम इंटरनेट पे अपलोड कर सकें. And finally, we need a domain. So space or domain are basically two most important things that we need. Domain, see, आप लोग वेबसाइट विजिट करते हैं, आपको पता होगा that domain is something that is the पहचान of your website. Something like google.com, youtube.com, netflix.com. So these are basically domains of your website, the address of your website, जो आप किसी को देते हैं ताकि people can access your website. So अब डोमेन किस तरह हासिल की जाए? सो बेसिकली देर आर वेब होस्टिंग कंपनीज जो आपको स्पेस और डोमेन प्रोवाइड करती हैं. Space, we have already our website designed and now we need a domain and space so that we can have our website uploaded onto the internet. So domain हमें किस तरह मिलता है? Basically आज के सेशन में हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे टू अपलोड अ वेबसाइट वो बेसिकली फ्री डोमेन्स प्रोवाइड करती है फायरबेस. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पर देर आर सेवरल कंपनीज जो आपको पेड प्लान्स देते हैं सो दैट यू, तो आप वहाँ से डोमेन परचेज कर सकते हैं अपनी मर्जी की. फॉर एग्जांपल मुझे वेबसाइट अपलोड, जो अरीबा ने आज वेबसाइट बनाई, हमने इस वेबसाइट का नाम रखना है ariba.com. सो ariba.com इज़ अ डोमेन जो मुझे पहले ख़रीदनी पड़ेगी इंटरनेट से. सो डोमेन हमें पैसों में मिलती है. नेक्स्ट थिंग इज स्पेस. अब डोमेन मिलने के बाद हमें अपनी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो इंटरनेट पे अपलोड करनी है. HTML फाइल्स, CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ये सारी इंटरनेट पे अपलोड करनी है. और ये स्पेस हमें कहाँ से मिलेगा? ये स्पेस हमें कहाँ से मिलेगा? बेसिकली हमारे पास डिफरेंट वेब होस्टिंग कंपनीज हैं या वेब प्रोवाइडर्स जिसको हम कहते हैं, उनके पास होते हैं सर्वर्स. वो हमें उस सर्वर का एक छोटा सा पार्ट या एक छोटा सा उसमें से सेक्शन हमें प्रोवाइड करेंगी जहाँ पे हम अपनी वेब फाइल्स स्टोर कर सकते हैं. सो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर. डिज़ाइन हमारे पास रेडी है, स्पेस हमें प्रोवाइड करेंगी वेब होस्टिंग कंपनीज और डोमेन भी हमें वही वेब होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड करेंगी. तो अब ये तीन चीज़ें हमारे पास रेडी हैं. सो वी आर गुड टू गो टू होस्ट आवर वेबसाइट. अच्छा, तो बिफोर स्टार्टिंग टू होस्ट अ वेबसाइट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड के प्रोसेस बेसिकली काम कैसे करता है. सो when you type a URL in your browser, जब आप अपना ब्राउज़र खोलते हैं, क्रोम या फायरफॉक्स या ओपेरा, जो भी ब्राउज़र आपके पास है, जब आप वो खोलते हैं और सर्च बार में जाके आप ऊपर जाके कुछ वेबसाइट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल google.com आपने लिखा, तो बेसिकली what happens is ये जो आप google.com लिखते हैं देन यू प्रेस एंटर, तो दिस इज बेसिकली यू आर रिक्वेस्टिंग दैट वेब सर्वर. आप गूगल के वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे ये वेबसाइट अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन पे देखनी है. तो यहाँ से जो आप URL लिखते हैं, जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है उस वेब सर्वर के पास बेसिकली जहाँ पे आपकी फाइल्स सेव हुई हुई होती हैं. और फिर वो फाइल्स उस सर्वर में से सर्च होती हैं एंड देन आपकी रिक्वेस्ट पूरी की जाती है और आपके वेब ब्राउज़र पे वो डेटा शो करवाया जाता है. So this was a basic quick introduction of web hosting. Why do we need web hosting and how web hosting works? I hope things are clear. Okay, so if I made my point clear, let's move on to next thing, that is Firebase. Acha. So now let's understand what Firebase is basically. To all those who don't know what Firebase is, जैसे मैंने भी पीछे बताया कि हमें डोमेन और स्पेस चाहिए होता है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए. तो डोमेन और स्पेस जो है वो हमें वेब प्रोवाइडर्स या वेब होस्टिंग कंपनीज देती हैं. एंड Firebase इज़ वन ऑफ देम वेब होस्टिंग कंपनीज जो हमें डोमेन और स्पेस देती हैं. Firebase बेसिकली गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. It is a backend as a service that helps you build, improve and grow your apps and website. तो बेसिकली Firebase हमें ऐसी बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने मोबाइल एप्लीकेशंस, अपने वेब एप्लीकेशंस, अपनी वेबसाइट को डिफरेंट बैकएंड सर्विसेज दे सकते हैं. एंड व्हाट डू आई मीन बाय बैकएंड एज अ सर्विस? तो बैकएंड एज अ सर्विस बेसिकली अच्छा, मैं ये एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल, मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मैंने एक कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनानी है, तो मैंने उस वेबसाइट का फ्रंट एंड रेडी कर लिया अपनी तरफ से. तो मैंने उस पर सारी डिटेलिंग वगैरह करके, उसकी स्टाइलिंग करके और फ्रंट एंड मैंने रेडी कर लिया. नाउ फॉर बैक एंड, क्योंकि मैं बैक एंड नहीं जानती, तो
वी नीड टू हायर अ टीम जो बैकएंड संभाले, उसके बाद डेटाबेस संभाले, उसके बाद डिफरेंट बैकएंड की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके लिए मुझे एक टीम हायर करनी पड़ेगी जो वेबसाइट मुझे वो कंप्लीट करने में मदद करे. सो बेसिकली क्योंकि मुझे सिर्फ फ्रंट एंड आता है तो मैंने फ्रंट एंड रेडी करके और बैक एंड की चीज़ों के लिए मैं एक टीम हायर करूँगी जो कि मुझे वो काम करके दे. सो बेसिकली बैक एंड सर्विसेज जो होती हैं ना, जो फायरबेस हमें प्रोवाइड करता है, उससे ये हमें फ़ायदा होता है कि if I'm a front end developer and I have enough skills to use a back end services, तो Firebase मुझे वो सारी services provide करेगा, built in services जो मुझे सिर्फ use करनी पड़ेगी, such as database provide करेगा Firebase मुझे सिर्फ, और नो SQL डेटाबेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब आपको कोई क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी, क्यूरी लिखे बगैर आप उसमें डेटा स्टोर करवा सकते हो. सो दीज आर थिंग्स दैट Firebase provides us and this is something that is known as backend as a service, BaaS प्लेटफॉर्म. अच्छा, तो Firebase बेसिकली डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसमें वी हैव स्टोरेज, होस्टिंग, गूगल एनालिटिक्स और बहुत सारे फीचर्स हैं. सो वन फीचर दैट वी गोइंग टू यूज टुडे इज द होस्टिंग फीचर ऑब्वियसली. एंड अबव ऑफ ऑल Firebase इज फ्री टू स्टार्ट. नाउ वेब होस्टिंग कंपनीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं. एक जो आपको पेड होस्टिंग और डोमेन्स देती हैं, मतलब आपको पैसे देके वो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, एंड अदर्स आर फ्री. फ्री वाले में वी हैव Firebase, वी हैव GitHub और बहुत सारी भी हैं. तो बेसिकली फ्री और पेड में फ़र्क क्या है? ऑब्वियसली व्हेन यू पेइंग फॉर समथिंग तो आपको उसके ज़्यादा एडवांटेजेस, ज़्यादा प्रोस मिलेंगे, एंड व्हेन यू यूजिंग समथिंग फॉर फ्री ऑब्वियसली दैट वुड बी लिमिटेड सर्विसेज. तो Firebase हमें फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है बट विद इन सम लिमिट्स. जैसे स्टोरेज हमें कम मिलती है 1 GB तक की, बट हु केयर्स व्हेन सिंस इट्स फ्री, राइट? उसके बाद Firebase हमें फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करता है. ऑल्दो वो डोमेन काफ़ी अजीब सी होती है, एंड बाय अजीब सी आई मीन कि उसमें नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं जो कि मतलब सिंपली आपकी मर्जी की डोमेन आपको नहीं मिलती, बिकॉज यू आर अवेलिंग समथिंग फॉर फ्री, तो आपको आपकी मर्जी का नहीं मिलेगा. बट वी डोंट केयर एज लॉन्ग एज इट्स फ्री. सो आई होप Firebase इज बेसिकली क्लियर टू यू गाइस कि Firebase है क्या और Firebase का कौन सा फीचर आज हम यूज़ करने जा रहे हैं. एंड above all Firebase is free to start, and when you're a beginner you're just playing with things and you're exploring things, so you don't want to pay for something you're playing with, right? So Firebase is basically, in my opinion, best for beginners if you're starting web hosting. Okay, so that was all of the theory. I guess मैंने बोर नहीं किया. Well, now we're going into the practical session. तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करेंगे Firebase से अपनी वेबसाइट होस्ट करना. So there are basically two most important things that you need. Third one is optional. As you can see, domain हमारे पास optional होती है, मतलब कि अगर आपके पास अपनी मर्जी की डोमेन है तो आप Firebase आपको ऑप्शन देता है कि आप वो डोमेन कनेक्ट कर लें. बट इफ़ यू डू नॉट हैव अ डोमेन ऑफ योर्स तो Firebase आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड करता है. सो डोमेन इज़ बेसिकली ऑप्शनल, बट ऊपर वाली दो चीज़ें आर मैंडेटरी, जिसमें से गूगल अकाउंट बेसिकली इज समथिंग कि आई होप सबके पास गूगल अकाउंट होगा ही सही. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इज Firebase CLI. ओके, तो Firebase CLI इज बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस जहाँ पे हम Firebase की कमांड्स रन कर सकते हैं. Firebase, since I have already installed Firebase CLI in my computer, so I'm not going to install that again, but I'm surely going to show you the process so that आपको बाद में कोई मसला ना हो. So basically Firebase CLI इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं. हम जिस तरीके से इंस्टॉल करेंगे वो तरीका होगा यूजिंग नोड पैकेज मैनेजर. नोड पैकेज मैनेजर के लिए सबसे पहले हम लोग Node.js इंस्टॉल करेंगे. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ओपन योर ब्राउज़र एंड यू हैव टू गो अहेड एंड टाइप इन सर्च बार nodejs.org. आप लोग Node.js की वेबसाइट पे जाएंगे और आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. एक आपको वो वर्जन होगा जो मोस्टली यूजर्स के लिए रेकमेंडेड होता है और दूसरा आपके पास वो वर्जन होगा जिसमें लेटेस्ट फीचर्स होते हैं. नाउ सिंस वी आर बिगिनर्स एंड वी डू नॉट वांट टू यूज द लेटेस्ट फीचर्स, तो हम रिकमेंडेड वर्जन डाउनलोड करेंगे. सो वंस यू हैव डाउनलोडेड योर वर्जन ऑफ Node.js, आप लोग सिंपली वो ओपन करेंगे. लेट मी ओपन माइन. सॉरी, माय लैपटॉप इज अ मेस. तो जब आप इंस्टॉलर ओपन करेंगे तो बेसिकली इसकी इंस्टॉलेशन में कोई हैक्टिक प्रोसेस नहीं है. आप लोग जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे, अ सेटअप विज़ार्ड विल बी
shown to you on your screens. तो आप simply next 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 करेंगे और basically wizard आपको guide करेगा throughout the installation and then you'll finish your installation. क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगी. ओके सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने Node.js इंस्टॉल कर लिया. अभी तक हमने क्या किया है, हमने Node.js इंस्टॉल किया. उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली Firebase कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉल करना है. और क्योंकि वो हम नोड पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करें, सो नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज यू विल गो अहेड एंड ओपन कमांड प्रॉम्प्ट इन योर कंप्यूटर्स. अच्छा, लेट मी नो इफ दिस कमांड प्रॉम्प्ट इसका फॉन्ट इज विजिबल टू यू गाइस और नॉट, ताकि मैं बड़ा कर दूं इफ इट्स नॉट विजिबल टू यू. सो व्हाट यू हैव, is it visible? मुंजा थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो. Okay. I guess it's visible now. It's quite obvious. अच्छा, तो next thing you have to do is you have to go ahead and open your command prompt. और command prompt में जाके आप लोगों ने installation की command लिखनी है, that is npm install my. अच्छा, इसमें space आएगा, npm space install space -g space firebase tools. तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपके पास Firebase इंस्टॉल करेगा. एंड व्हाट npm इज बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिस मेथड से हम इंस्टॉल कर रहे हैं. तो npm install -g firebase -tools इज द कमांड जिसके थ्रू आप Firebase इंस्टॉल करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस एंटर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट इसके पीछे कोई आपको मोर ऑप्शंस नहीं देगा. व्हेन यू प्रेस एंटर ये डायरेक्टली आपको इंस्टॉल कर देगा. तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने बेसिकली Firebase सेटअप कर लिया है अपने कंप्यूटर में, अपने लोकल मशीन्स में हमने Firebase सेटअप कर लिया है. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप्स जो होंगे, बेसिकली दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, क्योंकि इसमें हम अपनी वेबसाइट को एक्चुअली होस्ट करेंगे. तो फॉर दैट वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ ब्राउजर एंड sorry, we'll go ahead and type firebase.google.com. सबसे पहले आप जाएंगे Firebase की वेबसाइट पे, that is firebase.google.com. और यहाँ जाके आपके टॉप राइट कॉर्नर पे आप लोग को एक इस तरह का कुछ दिख रहा होगा. यहाँ से आप साइन इन करेंगे. बेसिकली आप लोग जब नए नए Firebase की वेबसाइट खोलेंगे तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा. मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, तो लॉगिन आप कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर गूगल अकाउंट, जो मैंने बताया था कि दैट इज गूगल अकाउंट इज अ मैंडेटरी थिंग. तो आप Firebase की वेबसाइट पे गए, आपने अपना गूगल अकाउंट लॉगिन किया. आफ्टर लॉगिंग इन योर गूगल अकाउंट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा गो टू कंसोल. तो you'll go ahead and click go to console. तो console बेसिकली वो जगह है जहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे और जहाँ पे आपके पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो शो हो रहे होंगे. तो मेरे ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे कंसोल में शो हो रहे हैं. नाउ आई विल गो अहेड एंड क्लिक ऐड प्रोजेक्ट. वेट, यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है. तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया माय फर्स्ट, लेट्स मेक इट वेब प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट. ओके, तो मैंने यहाँ पे व्हेन यू गो टू कंसोल एंड देन यू विल क्लिक ऐड प्रोजेक्ट, उसके बाद आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे माय फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट एंड देन यू विल सिंपली क्लिक कंटिन्यू. तो बेसिकली इतना कोई हेक्टिक प्रोसेस है नहीं, आपको थ्रू आउट गाइडेंस मिलती जाएगी वेबसाइट और इंस्टॉलर्स के थ्रू. अच्छा, now this step is basically what it will ask you Google Analytics आपने Firebase प्रोजेक्ट के लिए कैसी रखनी है. ना Google Analytics is basically something जो आपको वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए ऑप्शन मिलता है Firebase की तरफ से. एंड इट्स अ ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि आप लोग बेसिकली अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चेक कर सकते हैं कि कितने यूजर्स ने कितने टाइम में आपकी वेबसाइट को विजिट किया, कितने यूजर्स ने आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया, यूजर्स ने कहाँ से आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया. सो गूगल एनालिटिक्स इज बेसिकली फॉर वेबसाइट ट्रैफिक चेकिंग.
Now we'll go ahead and continue because we want to enable Google Analytics. उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन से कौन से अकाउंट पे Google Analytics जो है वो इनेबल करनी है. तो आई एम सेलेक्टिंग डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस. तो मेरा फायरबेस के जिस अकाउंट पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा होगा उसी अकाउंट पे गूगल एनालिटिक्स की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. सो नाउ आई विल गो अहेड एंड हिट दैट क्रिएट प्रोजेक्ट बटन. और अब इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. If you have any questions up to here, you can go ahead and type them in chat section. तो ताकि जब सेशन एंड हो जाए तो वहाँ से पढ़ के आप लोग की क्वेरीज का जवाब दे दूँ मैं. So it's almost done. It's finishing up. And yes, तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है. Now we'll go ahead and click कंटिन्यू. तो ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जो हमने अभी बनाया है, माय फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट. तो बेसिकली अभी हमने इस प्रोजेक्ट में कोई फाइल्स अपलोड नहीं किए हैं, हमने सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जाके फायरबेस की वेबसाइट पे. ठीक है. नाउ विल गो अहेड एंड मिनिमाइज इट. और अब हम दोबारा खोलेंगे CMD. अब हम CMD के थ्रू अपना प्रोजेक्ट सेट करेंगे, उस अपनी वेबसाइट की फाइल्स उस प्रोजेक्ट में भेजेंगे जो हमने अभी अभी क्रिएट किया. ठीक है. So the very first thing that you need to do is you have to go ahead and type Firebase login. Firebase login basically वो कमांड है जो आपकी लोकल मशीन को कनेक्ट करेगी उस अकाउंट से जो आपने अकाउंट अभी अभी Firebase की वेबसाइट पे लॉगिन किया हुआ है. So basically it's creating a connection between your local machine and that account that you just log in onto Firebase website. So we'll go ahead and click enter. Will take a few seconds. We'll go ahead. अच्छा, it's now asking के CLI usage और reporting information, मतलब if your projects have any error or something तो उसकी information आपके इस account पे दी जाए. So you'll go ahead and click yes. And उसके फ़ौरन बाद आपके पास बेसिकली एक टैब खुल जाएगा जिसमें आपके जितने भी गूगल अकाउंट्स होंगे वो शो हो रहे होंगे. वो ऑप्शन देगा आपको कि आपने अपनी लोकल मशीन को किस अकाउंट से कनेक्ट करना है. तो सिंस मैंने जो अकाउंट था वो था munza.shut00, तो आई गो अहेड एंड क्लिक दिस अकाउंट. तो मेरी जो मशीन में जो फायरबेस मैंने CLI इंस्टॉल किया है वो CLI मेरी इस अकाउंट से कनेक्ट हो रही है. ओके ग्रेट. तो फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल. नाउ वी कैन क्लोज दिस टैब और फिर हम आते हैं CMD पे. तो it shows that successfully logged in as munza.shah00@gmail.com. ओके. तो अब बेसिकली अभी हमने क्या किया, अभी तक जितने स्टेप्स किए हमने एक फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट किया फायरबेस की वेबसाइट पे. उसके बाद हमने सिंपली अपनी लोकल फायरबेस CLI को कनेक्ट किया फायरबेस की वेबसाइट पे ताकि हम अपने फोल्डर से फाइल्स उठा के उस प्रोजेक्ट में अपलोड कर सकें. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ अब हमें उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट की फाइल्स पड़ी हुई हैं, मतलब जो वेबसाइट अभी अभी अरीबा ने बनाई उसकी फाइल्स जहाँ पे पड़ी हुई हैं हमें जाना है उस प्रोजेक्ट में, सॉरी उस डायरेक्टरी में. तो या तो आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से जा सकते हैं जिसमें हमारे पास कमांड्स होती हैं डायरेक्टरी चेंज करने की, CD दैट इज़ चेंज डायरेक्टरी, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं. ओके. नाउ मैं चेक कर लूँ कि मैंने किस फोल्डर में फाइल रखी हैं. सो आई हैव दिस फोल्डर वेब सेशन का जो फोल्डर है इसमें बेसिकली मेरी वो फाइल्स स्टोर हुई हुई हैं जिसमें हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है. अच्छा, या तो आप डायरेक्टरी चेंज फॉर बिगिनर एंड यू डोंट नो, या तो डायरेक्टरी चेंज करने की कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड्स होती हैं. अगर नहीं, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप वो फोल्डर ओपन करें और इस जगह पे जाके आप CMD लिखेंगे तो बेसिकली वो आपको उस पाथ पे इस पाथ पे हमें उसने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके दे दिया. अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस पाथ पे फायरबेस इनिशियलाइज करवाना है. एंड बाय इनिशियलाइज आई मीन कि फायरबेस सेटअप करना है ताकि हमारी जो फाइल्स हैं वो बेसिकली हम अपलोड कर सकें. तो उसके लिए इनिशियलाइजेशन की जो कमांड होती है, फायरबेस कमांड्स आर वेरी सिंपल.
Firebase login की कमांड है Firebase लिखें स्पेस login. Firebase initialization की कमांड है Firebase space init. So it's not that difficult. There is no rocket science. Firebase init लिख के when you go ahead and press enter तो यहाँ पे 1-2 सेकंड्स लेगा और उसके बाद वो Firebase initialize कर देगा और initialize होते हुए आपके पास इस तरह का एक डिज़ाइन आएगा जिसमें Firebase लिखा हुआ होगा and then it will ask you are you ready to proceed or not. So yes, we're ready to proceed. अच्छा, उसके बाद इट विल गिव यू सम फीचर्स और ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन से फीचर्स यूज़ करने हैं. सो सिंस आई मेड इट वेरी क्लियर कि हमने होस्टिंग का फीचर यूज़ करना है बिकॉज वी नीड टू होस्ट आवर वेबसाइट ऑन टू द इंटरनेट. तो आप इस एरो कीज से आप नीचे आएंगे एंड देन इसको सिलेक्ट करने का तरीका ये है दैट जो भी फीचर आपने सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट और डिसलेक्ट के लिए स्पेस दबाएंगे. सी but for now since we are using hosting तो मैंने space दबा के hosting को select किया and then I'll go ahead and press enter. Okay, after selecting the feature that we are using अब ये हमसे पूछेगा कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है बट प्रोजेक्ट आप लोगों ने जो वेबसाइट है या जो एप्लीकेशन है वो कौन से प्रोजेक्ट में स्टोर करवाना है. सो अगर हमने डायरेक्ट वेबसाइट से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट ना किया हुआ होता तो यहाँ से हम CLI से भी अपने Firebase अकाउंट में प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते थे. But because we have created an object, a project already, so we'll go ahead and select use an existing project. I'll press enter. तो अब ये मुझे उन सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दिखाएगा जो मेरे उस अकाउंट पे पड़ी हुई होंगी जो मैंने जहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है जहाँ से मैंने अपना Firebase CLI कनेक्ट किया हुआ है. सो आई हैव ऑल दीज अकाउंट पर मैंने जो अभी प्रोजेक्ट बनाया था वो था माई फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट आई गेस या यही था. तो आई गो अहेड एंड प्रेस एंटर. तो अब बेसिकली अब ये हमसे पूछेगा कि आपको Firebase में पब्लिक डायरेक्टरी कौन सी रखनी है. सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पब्लिक डायरेक्टरी का क्या चक्कर होता है यहाँ पे. सो मैं पहले ये सेट कर देती हूँ फिर आई गो एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लिटिल कोड. तो मैंने यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको पब्लिक डायरेक्टरी कौन सी सिलेक्ट करनी है. तो आप यहाँ पे किसी डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं मतलब आप कोई सा फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो वो पब्लिक नाम का एक फोल्डर उस वेब सेशन फोल्डर के अंदर बना देगा जहाँ पे मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं. और ये पब्लिक फोल्डर बनता क्यों है इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी. ओके यस, अब ये Firebase इनिशियलाइज करा एंड सी Firebase इनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड. अब जाते हैं वेब सेशन के फोल्डर में और अब हम देखेंगे कि आफ्टर डूइंग द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हमारे पास कुछ Firebase की फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी और एक हमारे पास फोल्डर क्रिएट हुआ है पब्लिक के नाम से जिसमें एक फाइल रखी हुई है इंडेक्स. ओके, तो बेसिकली पब्लिक फोल्डर का क्या सीन है वो हम देखेंगे इस फाइल में Firebase की जो JSON फाइल है. It's taking time. अच्छा, तो दिस इज़ द Firebase फाइल. तो बेसिकली जब आप कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन अपने प्रोजेक्ट में स्टोर करवा रहे होते हैं जिसका आपने अकाउंट बनाया होता है तो बेसिकली Firebase एक फोल्डर क्रिएट करता है पब्लिक फोल्डर. पब्लिक फोल्डर क्या होता है? पब्लिक फोल्डर बेसिकली एक रूट फोल्डर होता है जिसमें आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट होना चाहिए. तो दैट जब कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर को तो सबसे पहले वो पब्लिक फोल्डर सर्च होता है. पब्लिक फोल्डर इज बेसिकली लाइक अ रूट फोल्डर. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि Firebase ने बेसिकली पब्लिक फोल्डर को यहाँ पे सेट कर दिया पब्लिक. एंड ये वाली जो लाइन है इससे आपको समझ आ जाएगा कि पब्लिक फोल्डर क्या सेट किया है पब्लिक. एंड बाय दैट आई मीन्स कि एक पब्लिक का फोल्डर क्रिएट हो चुका है. अगर यहाँ पे आप लोग कोई और नाम देते कोई सा भी और नाम से फॉर एग्जांपल मैं मुंजा नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देती तो यहाँ पे पब्लिक की जगह इधर मुंजा लिखा हुआ आ रहा होता. तो बेसिकली मुंजा तब रूट फोल्डर हो जाता. तो पब्लिक इज बेसिकली अ फोल्डर जो कि Firebase सर्च करता है जब भी उसको वेबसाइट की रिक्वेस्ट की जाती है क्योंकि पब्लिक फोल्डर ऐसा फोल्डर है जिसमें आपकी सारी वेब फाइल्स मौजूद होनी चाहिए जब आप वेब होस्ट कर रहे हैं. ठीक है, आई गेस आई मेड माई पॉइंट क्लियर. तो पब्लिक फोल्डर में मैंने बोला कि आपकी सारी फाइल्स होनी चाहिए बट सिंस आई हैव स्टाइल एंड इंडेक्स इन माय वेब सेशन फोल्डर नॉट पब्लिक फोल्डर सो आई विल गो अहेड एंड कट दीज फाइल्स और मैं जाके इन फाइल्स को पब्लिक फोल्डर में प्लेस कर दूंगी.
तो मेरे पास पब्लिक फोल्डर में अब मेरी दोनों चीज़ें हैं, मतलब मेरी index.html फाइल भी है और मेरी style.css फाइल भी है। तो जब हमारे पास पब्लिक फोल्डर या रूट फोल्डर रन होगा तो बेसिकली हमारे पास हमारी वेबसाइट शो होगी। Now we'll go ahead. Where's my command prompt? Okay, here. अच्छा, इनिशियलाइजेशन के बाद वी हैव अ लास्ट स्टेप जिसमें हम बेसिकली अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय डिप्लॉय? डिप्लॉय बेसिकली मीन्स पुशिंग योर प्रोजेक्ट ऑन टू द इंटरनेट। जो गिट यूजर्स होंगे उनको बेसिकली पता होगा कि डिप्लॉय कमांड इज सेम एज पुश कमांड। तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे होते हैं, हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स जो हैं, दिस इज द फाइनल स्टेप, और फाइनल स्टेप में अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स उठा के उस डायरेक्टरी में सेव करवा रहे होते हैं, उस अकाउंट के उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में सेव करवा रहे होते हैं जो अभी हमने क्रिएट की। तो विल गो अहेड एंड टाइप फाइरबेस डिप्लॉय। फाइरबेस डिप्लॉयमेंट की ये कमांड है एंड विल गो अहेड एंड प्रेस एंटर। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स और कुछ सेकेंड्स में आपकी वेबसाइट इज गोइंग टू गेट लाइव ऑन द इंटरनेट। अच्छा, सो वी हैव होस्टिंग यूआरएल। अब डिप्लॉयमेंट के बाद हमें बेसिकली एक यूआरएल मिलेगी एंड दैट यूआरएल इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ माय शॉप, जिसके थ्रू मैं अपने यूजर्स और अपने फ्रेंड को बोलूँगी कि मेरी शॉप या मेरी वेबसाइट विजिट करो। सो आई विल गो अहेड एंड कॉपी दिस यूआरएल एंड आई विल ओपन माय ब्राउज़र, गो टू अ न्यू टैब, और मैं यहाँ पे ये यूआरएल पेस्ट कर दूंगी। तो बेसिकली इस यूआरएल में जो मुझे डोमेन मिली है फायरबेस की तरफ से, दैट इज माय फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट दैट डैश C6CB2A। तो ये मेरी डोमेन है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, डोमेन आपको अजीब सी मिलती है बट हु केयर्स व्हेन इट्स फ्री। और साथ फायरबेस अपनी एक सब डोमेन प्रोवाइड करता है आपको। सो आई विल गो अहेड एंड प्रेस एंटर और आप देखेंगे कि जो वेबसाइट अरीबा ने बनाई थी, इट इज़ लाइव ऑन द इंटरनेट। So basically this is the whole procedure of Firebase hosting. तो अब वेबसाइट जो है हमारी लाइव आ चुकी है। इफ़ यू गाइस वांट, आप ये यूआरएल देख सकते हैं अपने पीसीज पे या अपने मोबाइल फोन्स पे, तो आपको भी ये नज़र आएगा। सो what we did is basically we launched our very first website onto the internet. So congratulations. Okay, I guess I'm done. अगर फायरबेस के स्टेप्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है या पूरे सेशन में, सिंस अरीबा ने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन नहीं रखा, तो अगर किसी को पूरे पूरे प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन है, तो यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस। द फ्लोर इज ओपन नाउ। थैंक यू। मुमता, आई थिंक पहले जो चैट में क्वेश्चंस पूछेगा उनका जवाब दे दें। जी जी, मैं एक सेकंड पढ़ लूँ वो क्वेश्चंस। See, okay, so someone is asking, 18 Software 29 is asking that why did we choose Firebase over GitHub deployment publishment? मैंने starting में ही बोला था कि we have a lot of वेब सर्विस प्रोवाइडर्स। हमारे पास गिटहब है, हमारे पास फायरबेस है, हमारे पास फायरबेस और गिटहब के अलावा दूसरे वेब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी यूज़ करें, it's totally up to you, but this session was specifically based on Firebase hosting. So yeah, I think you got the answer.
Okay, so all those asking for the recording of the event, जी बिल्कुल इस सेशन की रिकॉर्डिंग इसी चैट में अवेलेबल होंगी जैसे ये इवेंट खत्म हो जाता है. Okay, so Samir Farooq is asking that npm is not recognized as an internal or external command. So ये error basically तब आता है जब आप Node.js install नहीं करते. तो the very first step you gotta do is you have to install Node.js और फिर आप command prompt में जाके जब npm यूज़ करेंगे npm कमांड यूज़ करेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा. तो बेसिकली npm हमारे पास नोड के साथ इंस्टॉल होता है. जब हम Node.js इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही npm इंस्टॉल हो जाता है. एक सेकंड मैं आपको दिखा दूं कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि नोड आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है या नहीं. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आई गेस इट्स विजिबल. जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो नोड इंस्टॉल करने के बाद यू कैन गो अहेड एंड टाइप नोड स्पेस डैश स्मॉल वी. तो ये कमांड जो है ये बेसिकली आपको नोड का वर्जन शो करेगी जो आपके पास इंस्टॉल होगा. तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपके पीसीज में. इसके अलावा इफ़ यू वांट टू चेक कि फायरबेस CLI से इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो यू कैन गो अहेड एंड टाइप फायरबेस स्पेस डबल डैश वर्जन. तो इस कमांड से बेसिकली आपको फायरबेस की वर्जन शो कर देगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि फायरबेस CLI मेरे पास सही से इंस्टॉल हो गया है. नोड का वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है, फायरबेस का वर्जन इंस्टॉल है. तो ये कमांड्स बेसिकली डबल चेक करने के लिए होती हैं कि नोड इंस्टॉल हो चुका है या नहीं या फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है या नहीं. तो npm वाला एरर माय फ्रेंड आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने नोड इंस्टॉल नहीं किया. अच्छा, एक क्वेश्चन है, राहुल ने पूछा है कि फायरबेस पे हम कॉम्प्लेक्स वेबसाइट ऐड कर सकते हैं या नहीं. तो उसके लिए हमारे पास स्पेस लिमिटेड होती है. तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि हमें डेटाबेस के लिए कितनी स्पेस मिल रही है फ्री वाले वर्जन में, और स्टोरेज के हमारे पास अलग अलग स्पेस हैं. तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं. Okay, so by complex website, if you mean dynamic website, तो Firebase basically static websites और dynamic websites. मैंने वैसे कभी कोई dynamic website host करके देखी नहीं है खुद से, पर I read an article जिसमें उस बंदे ने प्रोसेस बताया हुआ था कि आप dynamic websites भी होस्ट कर सकते हैं Firebase से. So if you're interested in that, you can go ahead and Google that, I guess. क्योंकि मैंने खुद से कभी किया नहीं, so I'm not going to guide you. मैम क्वेश्चन ये है कि जो आपने वेबसाइट के अंदर पिक्स वगैरह ऐड की थी वो तो हमने इंटरनेट से उनका यूआरएल कॉपी किया था, लेकिन अगर वो पिक्स हमारे लोकल पीसी के अंदर हो तो वो भी इस तरह जब फायर बेस पे हम होस्टिंग करेंगे तो वो भी शो होंगी या वो नहीं होंगी? जी जी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई भी कंटेंट अपलोड करना है, होस्ट करना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप बेसिकली करेंगे क्या, आप लोग को मैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है पहले ये बताएं. हाँ हो रही है, चलें गुड. देखें जो भी पब्लिक फोल्डर में होगा, जितना भी कंटेंट आपके पास डाउनलोडेड है, ऑल यू नीड टू डू इज आप वो पूरा का पूरा कंटेंट उठा के पब्लिक के फोल्डर में रखें. इफ़ यू हैव एनी पिक्चर जो आपकी वेबसाइट में यूज़ हो रही है जो हमारी लोकल मशीन में डाउनलोड हुई हुई है, ठीक है, तो उससे आप बेसिकली क्या करेंगे, होस्टिंग के टाइम आप वो पिक्चर्स, वो वीडियोस, वो आइकन्स, वो सारी चीज़ें आप लोग पब्लिक के फोल्डर में रखेंगे अपने इस फोल्डर में. तो पब्लिक का फोल्डर बेसिकली रूट फोल्डर है जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स होनी चाहिए जो कि एक वेबसाइट में यूज़ हुई हुई हैं. तो index.html और style.css के अलावा जितनी भी इमेजेस, जितने भी आइकन्स, जितना भी कंटेंट होगा डेटा का, वो सारा पब्लिक फोल्डर में होगा. तो जब हम वेबसाइट होस्ट करेंगे तो हमें वो एग्जैक्ट सेम आउटपुट देगा जैसा अभी हमें दिया है. आई गेस आई एम क्लियर. आपको आंसर मिल गया? ओके गुड. अच्छा, तो फरवा इज आस्किंग, can you please tell about getting domain of your own choice? So basically आप लोग डोमेन परचेज कर सकते हैं
डोमेन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि डोमेन मिलती है पैसों में, तो यू कैन गो हैड। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री डोमेन, फ्री नहीं सॉरी, पेड डोमेन्स आपकी मर्जी की प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से एक वेबसाइट है godaddy.com। तो वेल दिस इज काइंड ऑफ टॉपिक, बट क्योंकि सवाल आया था तो मैं बता देती हूँ। तो GoDaddy पे जाके फाइंड, दिस इज अ सर्च बार, फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। तो आप जाके अपनी डोमेन लिखें जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए munza.munzasha.com। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डोमेन खरीदनी है, तो जब मैं ये सर्च करूँगी तो मुझे वो उसकी प्राइस दिखाएगा। सी 400 रुपये में मुझे ये डोमेन मिल रही है munzasha.com। सो munzasha.com इज़ अवेलेबल इन ₹400। अगर मैं परचेज करना चाहती हूँ, आई विल गो हैड एंड ऐड टू कार्ट, और मैं यहाँ से परचेज करूँगी। नाउ यू विल प्रोबेबली आस्क कि अगर हमारे पास अपनी डोमेन है तो हम अपनी डोमेन को फायरबेस से कैसे कनेक्ट करें। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। firebase.google.com पे जाके जब आप प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं बेसिकली, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है। हम्म, अच्छा फॉर एग्जांपल, अच्छा ये सोचते हैं कि मैंने अभी अपना प्रोजेक्ट होस्ट नहीं किया और मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली जब मैं अपनी वेब फाइल्स अपलोड करूँगी तो उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन देगा। जब मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन आएगा ऐड कस्टम डोमेन। तो बेसिकली कस्टम डोमेन का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी की डोमेन ऐड करना चाहते हैं, नॉट द फ्री डोमेन दैट फायरबेस प्रोवाइड्स यू। तो आप जाके यहाँ पे डोमेन का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया munzasha.com। अच्छा क्योंकि मैंने अभी ये ख़रीदी भी नहीं है, सो ये बेसिकली ये डोमेन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये डोमेन मेरी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप यहाँ जाके टाइप करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये आपकी ओनरशिप, मतलब ये चेक करेगा कि ये आपकी डोमेन रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये आपकी वेबसाइट को लाइव कर देगा। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट, गेट योर ओन डोमेन एंड कनेक्ट योर ओन डोमेन टू अ वेबसाइट एंड होस्ट इट ऑन फायरबेस। सो आई गेस ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। एंड if you guys have any other question you can go ahead and ask। अच्छा, एसन ने जो पूछा है व्हाट इज़ पर्पस ऑफ अल्ट इन इमेज टैग, तो अल्ट क्या करता है, वो हमारी इमेज टैग के साथ एक एट्रीब्यूट होता है। तो उससे हम अल्टरनेट टैग जनरेट कर सकते हैं कि अगर हमारी इमेज में कोई मसला और वो किसी वजह से डिस्प्ले ना हो सके, जैसे इंटरनेट कनेक्शन, कुछ भी मसला हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उस इमेज की जगह एक अल्टरनेट टैग डिस्प्ले और टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी GoDaddy से जब हम कोई डोमेन परचेज करते हैं तो उसकी होस्ट भी तो परचेज करनी पड़ती है अलग से। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आप डोमेन परचेज कर रहे हैं वहाँ से आपको होस्टिंग प्लान भी लेना पड़े। आप सिर्फ डोमेन परचेज कर सकते हैं और आप होस्ट उसको किसी भी दूसरी वेब सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कर सकते हैं, एज पर माय ओके नॉलेज। मैम, और फायरबेस पर बैक एंड डेवलपमेंट तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है वेबसाइट पे? वेल आई हैव नेवर डाइव्ड दैट डीप, सो सॉरी। अच्छा सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन बेसिकली, आई एम सॉरी। आप पूछना चाह रहे हैं कि फायरबेस पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? व्हाट डू यू मीन बाय कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? बैक एंड डेवलपमेंट पर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके। अच्छा, तो someone is asking that Firebase is not installed, how can I get that? सो बेसिकली मैंने जो प्रोसेस बताए थे इस पूरे सेशन में वो वही थे। पहले आप Node.js इंस्टॉल करेंगे। मैं, आप लोग चाहें तो स्लाइड्स भी मैं ये यहाँ पे शेयर कर दूंगी। आफ्टर द मीटिंग इस चैट सेशन में आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी ताकि आप लोग इजीली जो है वो प्रोसेस फॉलो कर सकें। तो पहले आप Node.js इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप Firebase इंस्टॉल करेंगे। तो ना आपको npm का एरर आएगा, ना आपको Firebase नॉट इंस्टॉल्ड वाला एरर आएगा। मैम जब हम डोमेन परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद हमें रीन्यू करवानी पड़ती है या फॉर लाइफ टाइम होती है ये डोमेन्स होती हैं? नहीं नहीं, लाइफ टाइम नहीं होती। डोमेन्स जो होती हैं वो बेसिकली उनके वो होते हैं, प्लान्स होते हैं। तो वो आपको डोमेन्स कुछ 1 साल के लिए प्रोवाइड करते हैं, कुछ 2 साल के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो आपको रिन्यू करवानी पड़ती है।
Well, okay, guys. So I think so. We should wrap up this event as time बहुत ज़्यादा हो चुका है. Munza, Ariba, kindly share the slides in the chat window ताकि slides जो है वो सबके पास available हों. जी sure I will. And मैं Anas वो is link भी asking share कर can we देती हूँ. do that with Yahoo account? So Anas आप Yahoo account से नहीं connect कर सकते because see I told you in the start कि Firebase is basically a Google platform, तो उसके लिए आपको Google account चाहिए होता है. Okay, and the recording of the event is also already available in the chat. अगर आप chat ऊपर करके देखें जब event start हुआ था उससे पहले, so the recording would be available over there at about 8:30. And still, you guys, if are having any question, you can contact Munza or Ariba through this chat anytime. ये chat जो है वो हमेशा available रहेगी आप लोगों के पास using the same link that we provided you to join this event. Bro, I have And a question. sorry, Hamad, you are not audible. I have a question. जी ask your question, but आपकी आवाज नहीं आ रही है. I'm saying that. Hello. Hamad, you with us? जी आ रही है आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, बस बहुत थोड़ी सी आ रही है, लेकिन आप चला बस सवाल पूछे अपना. अच्छा, मैंने क्वेश्चन ये करना था कि हमने कोई वेबसाइट होस्ट करनी है तो उसकी हमने अगर डेटाबेस MS SQL सर्वर में हमने सेव किया तो वो किस तरह हम उसे डिप्लॉय करेंगे फायरबेस पे? Munza, Ariba, did you get the question? Acha, I get the question. My brother, basically, I never connected an SQL server with Firebase though personally, पर मैंने क्योंकि एक आर्टिकल में इसके प्रोस एंड कॉन्स पढ़े थे और एंड आई डिड सर्च योर क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरे जहन में भी आया था और मैंने कहीं पढ़ा था. तो बेसिकली फायरबेस से आप अपना माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट तो कर सकते हैं अपना डेटाबेस, पर उसका जो आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा बेसिकली कि आप क्योंकि हर लाइन चेक नहीं कर सकते, आपको हर बार क्यूरी रन करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट बेसिकली इज़ राइट टू डू. तो इसकी मैंने एक और अप्रोच पढ़ी थी कि बेसिकली आप अपने माई एसक्यूएल सर्वर को आप उसमें रियल टाइम डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं, जो बेसिकली फायरबेस आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि फायरबेस हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है. मैंने अपनी स्लाइड्स में दिखाया था, उसमें से एक सर्विस थी रियल टाइम डेटाबेस वाली. तो आप अपने जो माई एसक्यूएल सर्वर है उसको बेसिकली आप रियल टाइम डेटाबेस पे शिफ्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक अलग से ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा, बट दैट इज बेसिकली एन ऑल्टरनेटिव यू कैन डू. बट आपने कहा लेकिन हमें बार बार उसके लिए क्यूरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन एक इस पे प्रोसीजर होता है स्टोर प्रोसीजर, उसमें हम एक दफ़ा क्यूरी लिख दें तो उसे अगर हम दोबारा रिकॉल करें तो वो एज अ रीयूजेबिलिटी परफॉर्म करता है, तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें. Yeah, if you know that, you can go for that. Good luck. But in my case, I don't think it makes sense to use MySQL with Firebase, since Firebase is providing you its own real-time database. So अगर हमें free में एक opportunity मिल रही है, so I guess we all should go and avail that. Okay, thank you. Do we have any other questions? Okay, but where will the Firebase DB be? जी Okay, Munza, I think so. We had enough questions. We should conclude this event now.
And Okay, yeah. like if you guys have any questions, you can contact Munza or Ariba on their emails, on student partner emails that would be visible to you if you hover over their names. आप उनके नेम के ऊपर होवर करेंगे, आपको उनकी ईमेल नजर आ जाएंगी. You can just mail them and ask them any question that you have. We have some community announcements as well. Ritik, feedback form will be shared as soon as all the events of the series are completed. We have a little bit of community announcement that we'll be having a session for becoming an MSP, becoming a Microsoft Student Partner. कि आप Microsoft Student Partner कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में पूरा event है on next 17th. So the registration link would be available on our Facebook page within some time, within an hour or so. So if you would like to become an MSP, so do join the event and do attend the session and let us know that who wants to be an MSP so that we can guide him or her further. So with that, I think the event comes to an end. Thank you so much, Ariba and Munza. That was a really wonderful session. और मैंने खुद जो है वो 3-4 बातें नहीं बल्कि बहुत सी बातें नई सीखी हैं. Thank you so much for that. Okay, what is it? Please share Facebook page. अच्छा, Facebook page link, Instagram page link, Facebook group link, all are shared in the email that was sent to you. Kindly check that email. If not, then let me share here. We are available on Facebook. We have a Facebook group of Microsoft Community Hyderabad, and we are also available on Instagram. So if you would like to connect us on any platform, you can connect to us, and we'll try to be as much responsive as possible. Once again, thank you, Munza. Thank you, Ariba. Everyone, please. Thank you so much for being here. It was so nice having you all. Still one more thing, हमारा एक next event भी है series का last event, that would be on 12th, I guess. Yes, that is on 12th. So उसके लिए भी अगर आप register करना चाहते हैं तो registration link आप लोगों के पास available है already. The same form that you used for this. So thank you so much guys for being here. See you in the next event, inshallah.